आगतम स्वागतम सुस्वागतम आगतम स्वागतम सुस्वागतम. पाहुण्यांच्या आगमनाने हर्ष झाला मनमंदिरा, करीतो प्रेमभावे आपले स्वागत या विद्यामंदिरा, स्वागत या विद्यामंदिरा. नृत्य म्हणजे महाराष्ट्राचे लेझिम नृत्य. लेझिम हा महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक लोकनृत्य व व्यायाम प्रकार आहे. हातात वाद्ययुक्त लेझिम घेऊन ठराविक तालावर शिस्तबद्ध हालचाली करत हे नृत्य सादर केले जाते. लेझिममुळे शरीरातील ताकद, स्फूर्ती, लवचिकता व सहनशक्ती वाढते. ढोल ताशाच्या गजरात, झांज यांच्या गजरात सादर होणारा लेझिम समूह भावना, एकात्मता व शिस्त शिकवतो. सण, उत्सव, क्रीडातील व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये लेझिमला विशेष महत्त्व आहे. हे नृत्य महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकसंस्कृतीचे प्रतीक मानले जाते. लेझिमचा ताल महाराष्ट्राची शान. लेझिमचा ताल महाराष्ट्राची शान. लेझिम म्हणजे ऊर्जा, लेझिम म्हणजे आनंद. लेझिम म्हणजे ऊर्जा, लेझिम म्हणजे आनंद. मातीचा गंध, लेझिमचा छंद. मातीचा गंध, लेझिमचा छंद. इंटरनेशनल स्कूल के सबसे छोटे चैंपियन द्वारा ले जा रही है. Akshara Parihar is a She is karate player and has won gold and silver medals in district and state level tournaments. Now, our next tall medal is Abhiraj Kalap from Standard Third. And he has handed over the torch to Aradhya Pawar with Prithvi Ekatpure of Standard Second. Aradhya Pawar, he is an athlete who has run 3000 meters run and has also participated in 3-kilometer run. Handed over to Om Raut with Pranjal, Standard First. He is an athlete and participated in long jump and in chess champion. Handed over to Karthik Fanse, Standard 8 with Ridan Kulkarni. Karthik Fanse is a good cricket player and has participated in district level competition. It now gives the guiding force of Eureka International School to formally declare the annual sports day open. May I request our ma'am to kindly come forward and declare the annual sports day. जैसे जैसे रंग बिरंगी गुब्बारे आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ेंगे, वैसे ही हमारे खिलाड़ी अपने परिश्रम, अनुशासन और खेल भावना से नई ऊंचाइयों को छुएंगे. मान्यवरांना मी आसनस्थ होण्याची विनंती करते. अब मैं हमारे स्पोर्ट टीचर श्री नंदकिशोर सर से अनुरोध करती हूं कि वो कार्यभार संभाले और मार्च पास्ट शुरू करें. हेलो, थैंक यू मैम. परेड स्टैंडीज, अटेंशन. परेड एक साथ जगह पर कदम ताल शुरू करेंगे. शुरू कर.
वेंटस हाउस मध्य से तेजल। Marching smartly ahead are our council heads, the head boy, followed by the head girl. Next is the sports head, followed by the co-curricular activity head, who is also followed by the discipline head of the students' council, showcasing leadership, confidence, and pride. The yellow house Ventus. The yellow house Ventus is shining bright with confidence, cheer, and fresh. Led by the house head teacher Dipali More. The march echoes a powerful message: a positive mind creates positive results with vibrant steps and bright spirit. इग्निस हाउस मध्य से तेजल। Energy. Here comes the red house Ignis. Education is not the filling to a pail, but the lighting of the fire. Led by the house head teacher, Priyanka Petkar. The color of fire, strength and determination, with hearts burning with passion and eyes fixed on excellence. टेरा हाउस मध्य से तेजल। Marching in harmony with nature and nurture. Here comes Greenhouse Terra. The earth doesn't belong to us, we belong to the earth. Led by the house head teacher, Rekha Pasilkar. Greenhouse Terra, terra that symbolizes growth, freshness, and teamwork. With synchronized steps and united spirit, they move ahead with confidence and cheer. एक्वा हाउस मध्य से तेजल। Following with composure, confidence, and steady rhythm, we welcome Blue House Aqua. When you drink the water, remember the spring. Led by the house head teacher, Pooja Pawar. Blue House Aqua, the color of discipline, depth, and determination. Like the endless sky and deep ocean, Blue House teaches us that true strength lies in focus, balance. They march forward with grace and precision. परेड थम। परेड स्टैंडीज। A very good morning to one and all present here. Once again, a warm and a spirited welcome. Today, as we celebrate strength, speed, discipline, and determination, we are honored by the presence of personality who truly reflects our theme, Zenith, from efforts to excellence. Respected dignitaries on the dais, beloved teachers, parents, and my little stars. On this beautiful morning filled with excitement and joy, we warmly welcome you all to the annual Sports Day of pre-primary to standard second students. Sports Day is not just about running fast or winning medals. It is about confidence, coordination, courage, teamwork, and fun. Welcome is not merely spoken in words, as the ancient Indian thought says, Atithi Devo Bhava. The guest is truly divine. The moments in a celebration that add meaning, grace, and inspiration. One such moment is the felicitation of a personality whose presence itself becomes a source of motivation. Today, we are honored by the presence of the chief guest of this ceremony. Let's give a warm welcome to our esteemed chief guest, Dr. Ashish More, a child health expert and certified parenting coach who has guided and counseled more than 10,000 parents. May I request Prema ma'am to felicitate our principal ma'am.
परेड स्टैंडिंग्स, परेड अटेंशन, एक साथ इग्निस हाउस मध्य से तेज चल, टेरा हाउस मध्य से तेज चल, एक्वा हाउस मध्य से तेज चल, परेड थम, परेड स्टैंडिंग्स। के लिए कुछ शब्द। खुशियां नग में बिखेर रही है, खुशियां नग में बिखेर रही है, दबे पाव आकर कुछ कह रही है। आज का दिन बड़ा ही खास है, आज का दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि कार्यक्रम में पधारे स्वयं आप हैं। दिल से करते हैं स्वागत, अभिनंदन और वेलकम, क्योंकि आप ही आज के कार्यक्रम की शान है। A good leader inspires confidence. A great leader inspires purpose. We truly fortunate to be guided by such leadership. I now invite our respected ma'am, the pillar of strength and inspiration for our school, to enlighten us, to share her vision and words of encouragement with us. May I request you, ma'am, to please address the gathering. Hello. Good morning all. Honorable Chief Guest Dr. Ashish More sir. All parents, my teaching non-teaching staff and my beloved students. It's very good morning to one and all. Today is a day of immense pride, boundless energy and a joyful celebration. As we gather here to inaugurate the annual sports meet of our Sindhu Education Society's Eureka International School. With immense pleasure, gratitude, I stand here before you to share the progress of our school for this academic year. First and foremost, I would like to share with you that our school has been officially affiliated to the Central Board of Secondary Education, CBSE, this year. This affiliation is not merely a certificate, it's a recognition of our commitment to quality, education, discipline, and child-centric learning and national education standards. As Helen Keller lightly said, alone we can do little, together we can do so much. CBSE affiliation strengthen our resolve to pride, holistic education, conceptual clarity, skill-based learning, and global competitiveness rooted in Indian values. Today's Sports Day becomes even more meaningful because it symbolizes what CBSE stands for, balanced development of mind, body, and character. Today's occasion is not merely a sporting event, but it's a festival of discipline, determination, teamwork, and dreams in motion. I am proud to share that our students actively participated in a wide range of sporting events, including athletics, team games, various sports, etc. Many of our young athletes represented district-level championships, bringing laurels and recognition to the school through their hard work and perseverance. We are also leading in the realm of academic excellence this year.
I would like to share with you that in the academic year of 24-25, we have delivered 100% result for 10th standard, scoring with toppers 96 and 94%, and I would like to mention it very specifically that too without tuitions. This is our own credit, I guess. In today's competitive world, the true education goes beyond textbooks and examinations. It lies in developing logical reasoning, analytical thinking, problem-solving skills, and scientific temperament. Our school actively encourages students to participate in such national and state-level examinations that to test not memory, but thinking ability and application of knowledge. Qualifying for these competitions itself is a matter of pride, as it demands deep understanding, discipline, and perseverance. Our students who cleared various stages of this examination have brought great honor to the institution and serve as inspiration for their peers. During this academic year of 25-26, a significant number of students appeared for various competitive exams like Olympiad exams and others, held by Science Olympiad Foundations, that is SOF, including mathematics, science, English, and general knowledge. I'm proud to announce that our 24 students achieved gold medal, 23 gold medals in GK, and 24 in English, and qualifying for higher levels. These achievements reflect our school's strong emphasis on concept-based learning and skill development in alignment with vision to NEP 2020. One of the most prestigious accomplishments of our school has been our students participate in and success in Homi Bhabha Bal Vaigyanik competition. This exam is conducted by MSTA, that is Mumbai Science Teachers Association, for only 6th and 9th standard students. A highly respected examination that nurtures scientific curiosity, observation, and experimentation among young learners. This exam was on 8th of November 2025, and out of our students, 80% of the students appeared the first level and qualified for the second level with exceptionally well performance and with certificate of merit. Our Chairman sir just arrived. Felicitation. Just complete. Our accomplishment in Arithmetic Genius Contest 2025. It's an abacus-based exam, and considering among tough exam competitions where students have to solve 200 questions in 10 minutes. I think the small class students also participated in that. Our almost 90% students participated for that and have cleared 3 rounds of competition. And it is honor to school that from among Pune and Mumbai division, Eureka stood first for this competition and felicitated with trophy and prizes and cash prizes for students. It becomes clear from this exam that our students are confident about their performances. The school extends its heartiest congratulations to all winners and all participants of different competitions for their hard work and interest in the different fields of knowledge. I also congratulate proud parents of our bright students. Other activities such as Achadi Ekadashi traditional day competition, palki making, rakhi making, Adan as well as paper lamp making in Diwali festivals were held in our school. Each medal won and each certificate earned is a testimony to countless hours of practice, unwavering commitment and guidance of our dedicated physical educational teachers as well. Our goal is clear, to create not just champions on the field, but champions in life. For this year, the sports achievements are also remarkable. In District Sports Organization, DSO Competition 25-26, during the academic year of 25-26, our students actively participated in various sports competitions with great enthusiasm and sportsmanship. In the DSO competitions 25-26, our team performed commendably, winning 2 matches in cricket and 2 matches in football, while in chess, one of our students successfully qualified up to 5 levels. In kickboxing and wushu, our students showcased remarkable skills and determination by qualifying up to semi-final round in the DSO sports competitions. Our students also participated in a wide range of sports, including Taekwondo, Subrata Mukherjee Cup football, athletics, kho-kho, dodgeball, football, wushu, yoga, shastranga martial arts, and gaining valuable competitive experience. Some of our students further demonstrated endurance and fitness
by participating in Pune Marathon. A proud milestone of this year was the first ever participation of our girls team in football, kho-kho and kabaddi at DSO level, marking a significant step towards inclusive sports development. This year, our school witnessed the vibrant fun fair organized by our students of 5th to 9th standard, in which we had total 34 food stalls and some, I think, 6 game stalls as well. Children enthusiastically took part in the games, enjoying moments, laughter, learning, and togetherness. This program successfully created a lively atmosphere and promoted recreation, social bonding, and overall well-being, just like our enthusiastic annual trip to the farmhouse where students enjoyed learning in the lush green surroundings. Alongside, in the students for pre-primary vegetable market for our nursery, junior KG and senior KG students stood as remarkable examples of practical learning where children happily displayed. They decided price and sold fresh produce and freshly grown products with care and responsibility. Along with that, we held various color day with themes. We had Disneyland theme for Pink Day, for example. We had ramp walk, we have ball dance. We celebrate color day at school to help students to develop self-confidence and improve their stage presence and public speaking activities and abilities. We had a function like activity like healthy food and junk food activity, shapes and color recognition activity. We had Independence Day celebration where we had a theme of freedom fighters, when we had a fancy dress competition as well. We teach them good touch, bad touch. We teach them coordination games, table manners activity. Even we taught them arrange my table and things activity. We symbolize how to organize your own things, like how to arrange books and notebooks in our bag, how to take care of your belongings. This is the main topic of the activity. Then we had Christmas celebration, Sankranti celebration, Black Day, in which we had a Black Day, Black Dress Day, and so much. Such activity transform learning beyond textbook, nurturing confidence, responsibilities, and social aware. Through the spirit of the holistic education our institution believes in. Dear parents, thank you for your trust, cooperation, and belief. When school and parents work together, children flourish. To parents who are visiting our campus today and considering to be the part of Eureka International School, admitting your ward in the educational institute, I assure that your school is a place where child is nurtured with care, discipline, opportunity, and vision. Here, education is not a pressure, it's a purposeful journey. With these words, I conclude my speech. May the spirit of sportsmanship guide every event today. And may this day remain a memorable milestone in the journey of our young athletes. Thank you. Have a wonderful and energetic sports day. Thank you, ma'am, for presenting the. I now request respected head coordinator, Priya ma'am, to kindly come forward to felicitate respected Rahul sir, the founder and chairman of Sindhu Education Society. Thank you, ma'am. Experience is the greatest teacher, and inspiration is its finest gift. Now, I am incredibly honored to invite today's chief guest, Dr. Ashish More, sir, whose journey and achievements continue to inspire young minds, to address the gathering and share a few words of encouragement with our budding athletes. May I request you, sir, to kindly address the gathering. Hello. Yes. Honorable dignitaries, Chairman sir, Principal ma'am, respected teachers, and all my co-parents. मैं co-parents इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी इस स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है. Her name is Swara. I'm really honored today क्योंकि मुझे यहाँ पे इस स्कूल ने बुलाया
और ये मौका दिया कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। आई एम नॉट हियर टू गिव अ स्पीच, मैं आपके साथ बातें करने के लिए आया हूँ। आई हैव टू नो what exactly you are dealing in a daily life with your child. आज स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स डे के रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स बच्चों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है? रेज योर हैंड्स कि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके आप में से कितने लोग घर जाने के बाद बच्चों को खेलने देते हो? सारे लोग। कितने घंटे तक बच्चे खेलते हैं आपके? 2 घंटे? बहुत बार खेलते रहते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या क्या खेलते हैं बच्चे? अभी एज आई नो कि 1st 2nd स्टैंडर्ड तक के बच्चे यहाँ पे हैं, तो जनरली वो सोसाइटी के ग्राउंड्स में जाते हैं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड प्ले है, एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड प्ले है ना। सो बेसिकली जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट का मेन इंटेंशन क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि वाई स्पोर्ट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द स्पोर्ट? क्यों जरूरी है? ऐसा क्या होता है स्पोर्ट्स से बच्चों की लाइफ में? एनीवन? फिजिकल ग्रोथ, यस, और मेंटल ग्रोथ। सी इन टुडेज वर्ल्ड अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों में पेशेंस कम हो गया है। हम पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एवरीवन वांट्स कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आए, है ना। तो घर आने के बाद पढ़ाई, सब कुछ, स्कूल और स्पोर्ट्स को हम थोड़ा सा सेकेंडरी रखते हैं। अब स्पोर्ट्स में हमारा मानना होता है कि चला बच्चे स्कूल से आएंगे, सोसाइटी के जो 3-4 फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप के साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे, घर आएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे और हमारा पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई पे रहेगा, एजुकेशन पे रहेगा। बट सिर्फ एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। आज की लाइफस्टाइल में, आज की जो कंडीशन है, आज के जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, स्पोर्ट जो सबसे बड़ी चीज बच्चों में पैदा करता है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है हारने के बाद दोबारा खड़े होने की क्षमता। अगर आपका बच्चा जिंदगी में कभी हारा नहीं है तो उसको जीत का मायना पता ही नहीं चलेगा, और जब वो इस स्कूल से आगे बढ़ेगा, 11-12 स्टैंडर्ड के बाद रियल दुनिया में आएगा, जहाँ पे उसके इंटरव्यूज़ होंगे, जॉब इंटरव्यूज़, स्पोर्ट्स इंटरव्यूज़, कुछ भी, वहाँ पे अगर उसको एक बार भी हार मिलेगी तो वो ये हार झेल नहीं पाएगा। इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि अर्ली एज में कुछ भी हो, बच्चे बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। कोई अगर स्टार्टअप भी शुरू कर दिया तो वो ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते। 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 1 साल के अंदर वो स्टार्टअप को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये नहीं चलेगा। हमारे टाइम पे हमें पता था कि अगर कुछ चीज़ शुरू की है तो उसमें अपना वक्त देना पड़ेगा, हमें उसके लिए अपना सब कुछ देना पड़ेगा, हमें बैड मोमेंट्स भी फेस करने पड़ेंगे और अच्छे मोमेंट्स भी फेस करने पड़ेंगे। तो स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों को प्रिपेयर करता है लाइफ के हर्डल्स के लिए। जो बच्चा पहला आता है स्पोर्ट में, वो गारंटी नहीं है कि अगले साल भी वही बच्चा पहला है, लेकिन जो बच्चा दूसरा आता है, तीसरा आता है, लास्ट भी आता है, अगर वो मेहनत करता है तो वो अगले साल पहला आ सकता है। सो स्पोर्ट यही सिखाता है कि यू हैव टू ट्राई दो यू फेल। फेल होना इसीलिए बच्चों को जरूरी है क्योंकि जब वो फेल होंगे तभी वो जीतने का एहसास अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और अगर फेल होते भी आगे चल के किसी भी फील्ड में तो भी खड़े रहने की ताकत उनमें आती है। इसीलिए स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप घर पे भी बच्चों को स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट हो, अभी जैसे आप घर पे सिबलिंग्स हो तो सिबलिंग में क्या होता है, मोस्टली बच्चे कुछ शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, या
मेरी बहन ने ये चीज़ ले ली, भाई ने ये चीज़ ले ली, तो बच्चे झगड़ा करने लगते हैं, रोते हैं। होता है ऐसे, है ना? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में वो फीलिंग डेवलप नहीं हो रही है कि दिस इज दिस थिंग जो हमें कोलैबोरेटिवली करनी है। चाहे आपने अगर बोर्ड गेम्स खेलने के लिए बच्चों को घर पे दे दिया कि चलो ऊनो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, कुछ भी हो गया, तो उसमें बच्चे स्ट्रैटेजिकली नहीं खेलते, जैसे मन में आता है वैसे खेलते हैं। और हम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे वैसा खेले जैसे रूल्स अलाउ करते हैं, लेकिन बच्चे रूल्स फॉलो नहीं करते। तो धीरे 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 हमको उनको रूल फॉलो करने के लिए डेवलप करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे कैरम लेके बैठोगे। अभी कैरम में भी क्या होता है, ये जो गेम्स होते हैं जिनको हम बोर्ड गेम्स कहते हैं, बोर्ड गेम्स में स्ट्रेटेजिक प्ले होता है। स्ट्रेटेजिक प्ले और अनस्ट्रेटेजिक प्ले में डिफरेंस क्या है? सपोज एक साल का बच्चा है, ठीक है, उसको आपने एक दो खिलौने लाके दे दिया, फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स लाके दे दिए, तो बच्चा क्या करेगा? वो ब्लॉक्स को पकड़ेगा, उसके मन में जैसे भी आता है वैसे वो ब्लॉक्स के साथ खेलेगा, ब्लॉक्स को फेंकेगा, मुंह में लेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन वही स्ट्रेटेजिक प्ले में अगर 3-4 साल का बच्चा है तो उससे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा, कुछ तो क्रिएट करेगा। तो जहाँ पे क्रिएटिविटी आती है वहाँ पे स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स कहते हैं। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में डेवलप करे या फिर खेले, तो इस तरह से खेलना चाहिए जैसे उसका कॉग्निटिव ब्रेन भी धीरे धीरे डेवलप हो। तो घर जाने के बाद अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा सोसाइटी ग्राउंड में खेल रहा है, तो ऑब्जर्व कि वो कैसे खेल रहा है। क्या वो सिर्फ भाग रहा है? अभी भागना ये एक फिजिकल एक्टिविटी ही है। बच्चों की डेली लाइफ में कम से कम 2 घंटे स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है। अभी क्या हो गया है आज की डिजिटल वर्ल्ड में, जैसे ही बच्चा घर पे आता है, अच्छा एक बात बताइए, घर पे आते ही कितने बच्चे फ़ोन ले लेते हैं हाथ में? यहाँ पे कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे घर पे आते ही, स्कूल से आते ही फ़ोन ले लेते हैं? अच्छा, खाना खाते वक्त कितने बच्चे फ़ोन देखते हैं यहाँ पे? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे खाना खाते वक्त फ़ोन देखते हैं? अच्छा, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को फ़ोन इसलिए दे देते हैं क्योंकि वो एम्बेरस नहीं होना चाहते? चलो पार्टी में चले गए, घर पे चले गए, किसी हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में बाहर बैठे तो चलो फ़ोन दे दिया और अब बच्चा चुप बैठेगा फ़ोन देखते वक्त। ऐसे कितने कितने पेरेंट्स हैं? सो एक्चुअली हम कितना भी ना बोले, हम सब ये करते हैं, सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो चाहते हैं कि सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें शांति मिले, हम शांत रहना चाहते हैं तो बच्चा भी शांत रहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है फ़ोन। बट आज का वो टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसने, जो हम डेली शेड्यूल बोलते हैं बच्चे का, कि बच्चे का आइडियल शेड्यूल कैसे होना चाहिए, जिसमें 2 घंटे स्पोर्ट्स होने चाहिए, 2 घंटे नॉन एकेडमिक लर्निंग होनी चाहिए। नॉन एकेडमिक लर्निंग में फिर बोर्ड गेम्स आते हैं, चेस आता है, कैरम आता है, जिसमें बच्चा कुछ सीखे। इन सारे चीज़ों का जो टाइम है वो फ़ोन ने लेके रखा है ना? तो बच्चा, जब तक आप बच्चे को फ़ोन से दूर नहीं करोगे तब तक बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब तक आप फ़ोन से बच्चे को दूर नहीं करोगे तब तक बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि फ़ोन जो है वो हाईली हुक्ड रहता है बच्चे के ब्रेन के लिए, बहुत ही ज़्यादा हुक्ड रहता है। आप अगर बोलोगे बच्चे को कि बेटा तुम फ़ोन देखोगे या कैरम खेलोगे, तो बच्चा क्या बोलेगा? फ़ोन देखूंगा। आप अगर बोलोगे कि बच्चा तुम फ़ोन देखोगे या फिर दीदी के साथ बाहर जाकर खेलोगे, तो बच्चा क्या बोलेगा? मैं फ़ोन पे गेम खेलूंगा। इसमें बच्चे की गलती कितनी है? क्या आपको लगता है कि इसमें बच्चे की गलती है? तो गलती किसकी है? पेरेंट्स की गलती है। आपको पता है पेरेंट्स की गलती है, फिर भी आप बच्चे को फ़ोन देते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स की गलती होती है? पेरेंट्स को पता होता है कि ये गलत, ऐसा क्यों होता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारी गलती है, फिर भी हम वो बच्चे को करने देते हैं? कोई बता सकता है यहाँ पे?
क्यों क्यों देते हैं हमको पता है कि ये गलत है या फिर ये सही नहीं है, फिर भी देते हैं, क्यों देते हैं? सी दिस इज़ एन एक्सक्यूज कि हमें नहीं पता। द थिंग इज कि हमें उसका एक्सटेंड नहीं पता। हमें पता है कि बच्चा ये देख रहा है, ये ठीक नहीं है। हमारी जो डेफिनेशन है वो है कि ये ठीक नहीं है। हमारी डेफिनेशन ये नहीं है कि ये हार्मफुल है ना। हमारा बच्चा अभी सपोज ये स्टेज है, एक 4 साल का बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स, आप पेरेंट हो, आपका बच्चा अगर बोले कि मम्मा मुझे यहाँ से नीचे जंप करना है, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है बेटा जंप करो, सही है। यू नो कि गिर सकता है बच्चा, थोड़ा पैर को लग सकता है, घुटने को दर्द हो सकता है, बट स्टिल व्हाट यू डू कि ठीक है बेटा यू कैन ट्राई। वही अगर बच्चा बोलेगा मम्मा मुझे वहाँ से नीचे जंप करना है, तो आप करने दोगे क्या? क्यों नहीं करने दोगे? यू नो द एक्सटेंट ना, आपको उसका एक्सटेंट पता है कि अगर वहाँ से बच्चा गिरेगा तो देर आर हाई चांसेस कि सिर्फ हाथ पैर ही नहीं टूटेंगे, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। सो द फैक्ट इज व्हेन वी नो द डैमेज, then we decide the rules, then we decide the thing for our child. When we know the damage, do we know the damage of the phones or this digital world? We don't know the damage. What we think is कि it's okay, ठीक है, देख रहा है, टाइम जा रहा है, but what exactly it is affecting, वो आपको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि आपको डिजिटल वर्ल्ड का डैमेज पता करना चाहिए और अपने बच्चे को फ़ोन से थोड़ा सा दूर करके स्पोर्ट्स में, नॉन एकेडमिक लर्निंग में, नॉन एकेडमिक लर्निंग मतलब पढ़ाई नहीं, नॉन एकेडमिक लर्निंग मतलब चेस हो गया, कैरम हो गया, एबेकस हो गया, बहुत सी चीज़ें जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो, इन चीज़ों में बच्चे को लेकर आना है। अब बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी जैसे कैडबरी है, चॉकलेट्स है ना, हम ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं कि जो दिन में एक आध चॉकलेट बच्चे को दे देते। कितने पेरेंट्स हैं ऐसे कि दिन में एक बार चॉकलेट दे देते हैं? अच्छा पेरेंट्स ना दे तो कितने ऐसे हैं कि घर में कोई और मेंबर है, मतलब ग्रैंड पेरेंट है ना, दादा दादी है, वो दे देते हैं। कोई खिलौना अगर देना हो तो आप नहीं देते पर वो देते, ऐसे ऐसे कितने पेरेंट्स हैं? बच्चे सुनते ही नहीं है। अच्छा बच्चे पापा मम्मा के पास सामने नहीं जिद करते, दादा दादी के सामने जिद करते हैं, ऐसे कितने पेरेंट्स हैं? सो द थिंग इज कि बच्चों को पता होता है कि सॉफ्ट पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे जाके जिद करनी है, ये बच्चों को पता होता है। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जाते जाते आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा जिसका रिजल्ट आपको तय करना है कि मुझे मेरे बच्चे के साथ कैसे डील करना है आगे जाके। एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी एक कार है ऑडी, नहीं ली अभी उसने, जस्ट एक 4 महीने पहले ऑडी कार ली है, और वो ऐसे ही एक बड़े स्कूल में अपने बच्चे को डेली छोड़ने जाता है उस कार से। वो सीडान है ना, तो सीडान में जाता है और एक दिन उसका जो बेटा है वो देखता है कि उसका जो फ्रेंड है उसके पापा ने दूसरी ऑडी ली है जो बहुत ही बड़ी है, मतलब एसयूवी है, ठीक है। तो वो उसके पापा को कहता है, एक दिन ऐसे ही उसके पापा के साथ वो स्कूल जा रहा होता है, तो उसके पापा को कहता है पापा वो देखो मेरा फ्रेंड है, उसने तो वो ऑडी ली है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ठीक है उसने ऑडी ली है लेकिन हमारी भी ऑडी है। तो बच्चा कहता है कि पापा हमारी ऑडी है लेकिन हमारी तो सीडान है, उसकी तो एसयूवी है, उसको सनरूफ है, बहुत सी चीज़ें उसको, तो मुझे तो वो कार चाहिए, मुझे ये कार नहीं चाहिए। और रोने लगता है वो, है ना। पापा परेशान कि अरे बेटा अभी 4 महीने पहले कार ली हमने, अभी क्यों लेना है, ये नहीं, ये ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रोता है। फिर कैसे तो करके पापा उसको स्कूल में छोड़ते। अब वापस आते वक्त स्कूल से पापा के माइंड में चल रहा है कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को नई ऑडी चाहिए। अब वो बिजनेसमैन है तो वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता। तो वो तुरंत जाता है, कॉल करता है ऑडी के शोरूम में कि हमें 1 हफ्ते बाद मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप कुछ भी करके मुझे वो मॉडल दे दो। और जन्मदिन के दिन वो बच्चे को सरप्राइज देता है, वो ऑडी घर पे लेके आता है और बच्चा बहुत खुश होता है
और उसके पापा कहते हैं सी बेटा आई लव यू ना, है ना, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और बच्चा भी कहता है हाँ पापा आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं बहुत खुश हुआ। तो अब इस स्टोरी में आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उस बिजनेसमैन ने गलत किया? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, चलो अभी दूसरी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। एक स्कूल है छोटा, है ना, ऐसा मान के चलो कि एक छोटा, बहुत छोटा स्कूल है, उसमें एक पिताजी अपने बच्चे को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं डेली, है ना। अब वापस आते टाइम स्कूल से बच्चे को एक टॉय शॉप दिखता है, रास्ते पे होते हैं ना, है ना, टॉयज होते हैं छोटे छोटे, है ना, क्या बोलते हैं हम उनको, हाँ टेडी शॉप होता है। तो बच्चा उसमें से एक टेडी दिखता है पिंक कलर का, बोलता है पापा मुझे ये टेडी चाहिए, और बच्चा रोने लगता है। पापा कहते हैं कि बेटा ऑलरेडी घर में 3-4 टेडी है, अभी और एक टेडी क्यों लेना है? तो बच्चा सुनता नहीं, बच्चा रोने लगता है, लेटने लगता है इस पे गाड़ी पे कि नहीं नहीं पापा मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। तो पापा बोलते टेडी वाले से कि भैया कितने का है वो? तो टेडी वाला बोलता है कि ये बस 100 रुपये का है। तो पापा बोलते ठीक है यार 100 रुपये का है, क्यों बच्चे को 100 रुपये के लिए रुलाना है? 100 रुपये दे के टेडी लेके आते हैं, देते ही बच्चे को, और बच्चा खुश हो जाता है, पापा को किसी करता है। पापा कहते हैं देख बच्चा अभी ठीक है, खुश हो गया तू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा भी कहता है हाँ पापा यू लव मी आई लव यू टू, और खुश होकर चला जाता है। अब इस केस में आप में से कितने लोगों को लगता है कि उस पेरेंट ने गलत किया? कितने लोगों को लगता है कि गलत नहीं किया? सी अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो, इस सिनेरियो में आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ये सिनेरियो हम जैसे लोगों के साथ डेली होता है ना। सो हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ से कि ठीक है ना, 100 रुपये की चीज़ है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमने अफोर्ड की और बच्चे को दे दिया, बच्चा खुश हो गया। सी अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू हियर। आज आपका बच्चा आपसे टेडी मांग रहा है, कल हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे ऑडी मांगे, और जब ऑडी मांगेगा क्या तब आप उसको ऑडी दे पाओगे? और अगर नहीं दोगे तो वो बच्चे के लिए एक रिजेक्शन होगा। अगर वो रिजेक्शन वो हैंडल नहीं कर पाएगा तब बच्चा कुछ भी कर सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेरेंट, चाहे बच्चा कितने भी गरीब घर का हो या चाहे बच्चा कितने भी अमीर घर का हो, हम सब पेरेंट के माइंडसेट से सोचते हैं, हम बच्चे के माइंडसेट से नहीं सोचते। वो बिजनेसमैन का बच्चा, उसके माइंड पर जो असर हुआ वही सेम असर उस बाइक वाले जो अंकल थे उनके बच्चे पे हुआ। तो वेन एवर वी टेक अ डिसीजन कि बच्चे को एक चीज़ देनी है या नहीं देनी है, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइल्ड, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेरेंट। जस्ट बिकॉज जब हम खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं कि ठीक है दे देते हैं, तब वो जो ठीक है वो आगे जाके बच्चे के लिए हार्मफुल बन जाता है ना। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप अपने बच्चे के लिए करो, 10 बार सोचो कि मेरे बच्चे के लिए सिर्फ ठीक है या फिर हार्मफुल है। अगर आपका माइंड आपको बोले कि ये हार्मफुल है, तो आपका बच्चा कितना भी रोए चिल्लाए, उसके लिए आपको मना ही करना है। और इफ़ यू फील कि नहीं ठीक है मेरे बच्चे को ये मैं दे सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले खुद को जस्टिफाई करना है कि क्या मुझे अपने बच्चे के लिए देना चाहिए। अगर हाँ तो दीजिए, अगर ना तो बच्चा कितना भी रोए मना कीजिए। अब इसमें बहुत सी चीज़ें एकदम से नहीं होगा, इसीलिए हम स्कूल के साथ मिल के कुछ सेशंस अगले महीने या फिर उसके अगले महीने प्लान करने वाले हैं, जिसमें हम पेरेंट्स से बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, जो रियल कोर इश्यूज है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए स्पोर्ट्स डे के लिए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों को खेलने दीजिए। जितने आपके बच्चे खेलेंगे उतना वो फिजिकली ग्रो करेंगे, मेंटली ग्रो करेंगे, रेजिलियंस डेवलप होगा और फ़ोन से दूर रहेंगे। जितना फ़ोन से दूर रहेंगे उतना उनका ब्रेन और अच्छे से डेवलप होगा। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से थोड़ा बहुत कुछ ग्रास्प हुआ होगा। सो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिले। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग टू एवरीवन। Thank you so much. Thank you very much, sir, for your Thank you, sir.
Your words were really inspiring. Actually, आज सर को एज अ चीफ गेस्ट बुलाने का मेन पर्पज़ ही ये था. We are facing several issues about students, but those are not actually related to students, those are actually related to parenting. हमें इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि बच्चे प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं, बच्चे सारे ही एक जैसे होते हैं. प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंटिंग में, ओवर पॉजेसिवनेस, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग. सर का इस पे बहुत अच्छा से काम करते हैं सर. सर के सेशंस भी हमने जब सर ने हमें कांटेक्ट किया तो वी वर हैप्पी कि चलो ऐसा कुछ सेशंस देने के लिए कोई पेरेंट में से हमारे पास आए, और हम उसके सेशंस भी लगाने वाले हैं. जैसे आप सब ने कल का वीडियो देखा होगा, कल के हमारे जो चीफ गेस्ट थे तो डीसीपी ऑफ पुणे कदम सर थे, एंड दूसरे थे डेप्यूटी डायरेक्टर भाग्यश्री बिले मैम. शी इज़ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज. क्योंकि कल का मोटिव था, कल सारे बड़े बच्चे थे, कल का मोटिव था कि बड़े बच्चों को करियर के लिए इंस्पिरेशन देना है, उन्हें लाइफ में डिसिप्लिन सिखाना है. दे आर एट दैट स्टेज कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है. आज अगर मैं ऐसे कोई बुलाती, कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बुलाती या फिर कोई ऑफिसर ऐसे कोई बुलाते, मेरे छोटे बच्चों को उसमें से कोई लेना देना नहीं है. दे आर जस्ट नथिंग टू डू विद दैट. इवन आई नो कि पेरेंट्स भी यहाँ पे अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए आए हैं. उन्हें स्पीच में, भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैंने इतना सारा पूरा वो पढ़ा मुझे खुद पता है कि कितनों ने सुना, बट इट्स माई ड्यूटी. मुझे आपको बताना तो पड़ेगा कि साल भर स्कूल क्या करता है, हमारे इतने अचीवमेंट्स है, हमारे बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं. वो मैं तो बट ऑफकोर्स आपको बताऊंगी ही. पर अभी सर ने बात की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करनी है. पेरेंट्स, आपको थोड़ा पेरेंटिंग में या फिर थोड़ा बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि हम एज अ टीम हमारे बच्चों को तैयार करें. राइट फ्रॉम नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड आज सारे वही पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, सारे छोटे बच्चों के. तो ये थोड़ा जो ओवर पॉजेसिवनेस हो जाता है ना बच्चों के लिए, उसे थोड़ा कीप असाइड. आपको पता है यूरेका विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन केस ऑफ द चाइल्ड सिक्योरिटी, सेफ्टी. कोई भी हो, हर क्लास में वीडियो, ऑडियो विजुअल कैमरे हैं जिसके फुटेज हम आपसे भी शेयर करते हैं इफ़ नीडेड, जो हर टाइम मेरे केबिन में शुरू होता है. आप सबको पता है ये चीज़. और कुछ अगर इशू होता है तो मैं पेरेंट्स को उतना अलाउ करती हूँ कि आप मेरे सामने आके बैठिए, देखिए. पर कुछ इंसिडेंसेस इस तरीके से सामने आए अभी कुछ महीनों में या फिर पिछले साल, पेरेंट्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं टीचर्स के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि टीचर्स डरते हैं लिटरली. किसी क्लास के जब पेरेंट आए, ये जब न्यूज़ ऊपर ऑफिस से ऊपर जाती है टीचर को कि मैम आपके पेरेंट आए हैं और आपको पता है आफ्टर स्कूल आवर्स से सिर्फ मिलना अलाउड है, स्कूल आवर्स में तो हम अलाउ ही नहीं करते. तो वो टीचर ना रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए पूरी डिस्टर्ब हो जाती है कि ओ माय गॉड क्या हुआ है मुझसे, मैंने कुछ किया है क्या, क्यों आए होंगे. वो कोऑर्डिनेटर की तरफ भागती है, वाइस प्रिंसिपल की तरफ भागती है, मेरे तरफ भागती है, मैम मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्यों आए हैं. सो इज़ इट रियली, डू यू वांट दिस. आपको मतलब कुछ हेल्दी डिस्कशन भी करना है, पर उसके पहले ही वो टीचर की मेंटेलिटी ख़राब हो जाती है. डरने लगे हैं टीचर्स, लेट नाइट कॉल्स जाते हैं टीचर्स को, या फिर उनको ऐसे क्या कहते हैं ना, डिसरिस्पेक्टफुल मैसेजेस जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से. अब एक रिसेंट मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी. मैंने ये पीटीए में मीटिंग में पीटीए से भी शेयर किया. फर्स्ट की या सेकंड के कोई पेरेंट है, उनका बच्चा स्पोर्ट्स डे आपको पता है हफ्ते भर से चल रहे थे. आज सिर्फ फाइनल्स मैचेस हैं हमारे, राइट. हफ्ते भर से चल रहे हैं उनके रनिंग रेस, रिले रेस, हर्डल रेस. छोटे छोटे सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चे, सिर्फ वो एथलेटिक्स में ही उनको ट्रेन किया जाता है. फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड्स उन लोगों को टीम में लिया जाएगा. तो वो पेरेंट का बच्चा फर्स्ट राउंड में अच्छे से निकला, दे वर हैप्पी. सेकेंड राउंड जब हुआ तब उनके बच्चे का ही वॉज नॉट वेल फॉर सम रीज़न. हो सकता है छोटा बच्चा है, ही वॉजंट वेल, सो वो नहीं जीत पाया. दूसरा बच्चा जीत गया, ही केम ऑन 4th प्लेस, सो वो फाइनल में नहीं आ पाएगा. तो पेरेंट्स ने ऑफिस में आके टीचर से झगड़ के, मुझसे झगड़ के, बहुत झगड़े किए जस्ट टू कन्विंस मी कि पूरी रेस फिर से ली जाए. और नॉट ओनली पूरी रेस, उनका बोलना है कि फाइनल में भी 40 के 40 बच्चे दौड़ेंगे, उनमें से देखते हैं कौन फर्स्ट आता है. इज़ इट रियली टेक्निकली पॉसिबल कि मैं यहाँ पे फाइनल्स के दिन 40 बच्चे हर क्लास के दौड़ाऊँ? आप लोग बताइए, इज़ इट पॉसिबल? क्या इसे कंपटीशन कहते हैं? इसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं? आप लोग उससे कन्विंस हो? सिर्फ मेरा बच्चा नहीं आया, आपका आ गया, इसलिए मैं पूरी कंपटीशन फिर से कराऊंगी?
कल को आपका बच्चा अच्छा एथलीट है, ओलंपिक तक चला गया, समझो उसी दिन सच में उसका फिर से उसको कुछ हो गया, कभी लोग नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ भी हो गया, तो क्या ओलंपिक वाले भी आपके लिए फिर से पूरी रेस लेंगे? उसके लिए मैनेजमेंट से झगड़ा करना इज इट वर्दी? नहीं है। स्कूल के भी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपके बच्चे के इमोशंस हर्ट हुए जस्ट बिकॉज वो हार गया, आपके एज ए पेरेंट हुए हैं, तो जो बच्चा जीता है वो भी तो हर जगह बता के आया है ना कि मैं जीत गया हूँ, मैं फाइनल में दौड़ने वाला हूँ। उसके पेरेंट्स भी तो कुछ बता के आए हैं, उनके भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उनकी भी तो कुछ इमोशंस है उस चीज़ को लेके। तो उनकी इमोशंस हर्ट करके मैं फिर से रेस लूँ ताकि आपका बच्चा फिर से जीत जाए, इज इट इथिकल? हमने हमारे स्टेज पे एक्शन ले लिया, चलो मैंने तो एडमिशन ही कैंसिल कर दिया फॉर नेक्स्ट ईयर वो पेरेंट का, क्योंकि ऐसा अनहेल्दी एटमॉस्फेयर मैं नहीं रख सकती स्कूल में। आपको लगेगा कि इसमें बच्चे की क्या गलती है, लेकिन अगर ऐसे कोई पेरेंट फोर्स करता है तो बाकी बच्चों के चाहे इंजस्टिस हो जाता है, जो कि हम नहीं कर सकते। कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ती हैं, कभी हमें टीचर्स की गलती हुई तो उन्हें भी समझाना पड़ता है, लेकिन कभी पेरेंट की हुई तो हमें वो भी सोचना पड़ता है। हम यहाँ पे अगर 1000 बच्चों को संभाल रहे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको एक जैसा इन्वायरमेंट दें। सम आर फ्रॉम वेरी हाई कल्चर, कुछ मिडिल क्लास से आते हैं, कुछ बच्चों के पास उतनी फैसिलिटी एमिनिटी नहीं है, पर इस बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा, आप टीचर्स के बारे में जो घर पे बोलते हो या फिर यहाँ आके अपने बच्चे के सामने जिस तरीके से टीचर्स से बात करते हो, डिसरिस्पेक्टफुलनेस ये जो होता है, आज आप टीचर के लिए कर रहे हैं वो सेम बच्चा कल आपके लिए करेगा, पेरेंट के लिए करेगा। हमने स्कूल में वैल्यूज सिखाते हैं, जस्ट कीपिंग एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस इज़ नॉट द मोटिव ना। ये जो 2nd स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप उन्हें एक चीज़ बता दो वो सारी दुनिया उसी नज़र से देखेंगे। आप उन्हें बोल दो तेरे टीचर को क्या आता है, वो स्कूल की किसी भी टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो उसी के साथ बड़ा होगा आगे जाके कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है, आज टीचर को नहीं आता था कल मेरे पेरेंट को नहीं आता है, आपको क्या समझता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, स्कूल को प्रेशर में नहीं रखना है। आप हमें थोड़ा फ्री हैंड देंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपका प्रेशर हमारे पे रहेगा तो ऐसा ना हो कि मेरे टीचर्स गिव अप कर दें कि इतना प्रॉब्लम होने से अच्छा, मेरी नौकरी जाने से अच्छा तो मैं ये करूँ कि बेटा ठीक है तू बैठा रहे, तू कुछ ना कर। ना मैं होमवर्क के लिए प्रेशराइज करूँगी, ना मैं उसको एक्टिविटीज़ के लिए प्रेशराइज करूँगी, ना मैं किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करूँगी। सॉरी, मुझे यह चीज़ आज बोलनी पड़ रही है क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स का भी सोचना पड़ेगा। बच्चे तैयार करना मेरा काम है और वो मैं इतने साल से कर ही रही हूँ। स्कूल कहीं पे भी कभी पीछे नहीं हटा है, आपको पता है। फॉर ईच एंड एवरी क्वेरीज अ सिंगल क्वेरी फ्रॉम पेरेंट साइड, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं सुन के ना लूँ। जो भी है मैं हर बार मिलती हूँ, सुनती हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे मैनेजमेंट पे अफेक्ट नहीं कर रही है, ये कल को जाके बच्चों के ही फ्यूचर पे अफेक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में हमें एज अ टीम थोड़ा सोचना होगा अगर बच्चे तैयार करने हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आज सर ने काफ़ी अच्छे से बताया हमें, सर स्क्रीन एडिक्शन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये उम्र में बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ स्पॉइलिंग देयर माइंड। उनकी कैपेबिलिटीज़ खा रहा है पूरी तरीके से, बच्चों को करना ही नहीं है। क्लास में टीवी लगाया है तो वो खुद से बोलते कि मैम इस पर लगा दो ना, सॉन्ग्स लगा दो, क्या करना है बाद में देखेंगे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनको आप एजुकेशनल मूवी दिखाते हो तो वो उनको बोर हो जाती है। आप शिनचैन लगा दो, खुश हो जाएंगे। द वे शिनचैन स्पीक्स, आपको भी पता है वो बच्चा कितना रूड है बोलना नहीं चाहिए कार्टून कैरेक्टर है, बट एक्चुअली है। तो बच्चों को ऐसे कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, तो क्या हम ऐसे रोल मॉडल्स बनने देंगे बच्चों के सामने? नहीं ना। अभी ये बच्चों का पहला स्कूल है, उनका स्कूलिंग का स्टार्टिंग है। मैं जानती हूँ आप सब लोग उस चीज़ को लेके बहुत अटेंटिव हो, बहुत मोटिवेटेड हो। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट बने, लेकिन फॉर दैट हम लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ट्रस्ट अस। यूरेका बच्चों के बारे में कभी भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर कुछ भी हो। एक 3-4 महीने पहले का एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताती हूँ। एक बच्ची क्लास में खुद से ही गिर गई। मतलब स्कूल जस्ट बेल रिंग हुई और बच्चे जैसे भाग के जाते हैं, तो एक दूसरा बच्चा था जो अपनी बैग भर रहा था, वो लड़की उसके ऊपर से जंप करने गई, वो खुद से गिरी
उसको लगा, उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड दिया गया, सब कुछ किया गया। वो बच्ची ने घर जाके क्या बताया आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। पेरेंट बोलने हैं कि टीचर ने इसको मारा है और मेरे बच्चे का खून निकल रहा है। वी सेड नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट अलाउड। फिर भी हम अलाउ कर रहे हैं कि चलो सर आप बोल रहे हैं ना, हमने टीचर, कोऑर्डिनेटर, पेरेंट दोनों को केबिन में बिठा के उनको लिटरली जो क्लिप था एज इट इज़ दिखाया। उसमें भी उनका बोलना है कि हमको आने में आधा घंटा हो गया, आपने चेंजेस किए होंगे। तो इज़ इट रियली पॉसिबल कि आधे घंटे पहले हुए सीसीटीवी फुटेज में मैं बैठ के वहाँ पे चेंजेस करूँ? फ्रैंकली स्पीकिंग इतने तो टेक सेवी हम भी नहीं हैं। दिख रहा है, सब दिख रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने टीचर्स के सामने मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे, टीचर्स को गंदी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे, टीचर्स के वीडियो बना रहे, ऑफिस का वीडियो बना रहे, लिटरली पुश कर रहे लेडीज टीचर को, दिस एंड दैट। और ये बिहेवियर उनकी बेटी भी उनके सामने देख रही है, हमारे सामने, उनके सामने देख रही है। उससे वो बच्ची ने क्या सीखा होगा? इवन दो यू आर रॉन्ग, योर पेरेंट्स गोइंग टू सपोर्ट यू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि आप सही हो या गलत हो। क्या हम ये देना चाहते हैं बच्चों को कि आप सही हो या गलत हो बेटा, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ? नहीं, आप सही हो तो हम खड़े हैं, आप गलत करोगे तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी और आपको वो लेनी पड़ेगी। जो हम स्पोर्ट्स से सिखाते हैं कि आपको गिरना भी पड़ेगा, आपको उठना भी पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा फिर से, और जीतना भी पड़ेगा। अगर हम ये सिखाना चाहते हैं तो हम उनकी गलतियों को इग्नोर करना तो छोड़ो, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये उनके फाउंडेशन ईयर्स है, इसमें उनकी गलतियाँ समझना ही उनके लिए ज़रूरी है। ये स्टेज पे ऐसे होगा सेकंड स्टैंडर्ड तक कि बच्चों को हर चीज़ के लिए टोका जाएगा, आप उसे पर्सनली मत लीजिए। पेरेंट्स कैसा होता है कि मेरे बच्चे को क्यों बोला जाता है, मेरे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, टारगेट करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है सर। वो बच्चे के साथ आपसे ज़्यादा टाइम तो हम बिताते हैं, हमें उसके तैयार करना है, हम उसे टारगेट नहीं कर रहे। हम बार बार अगर टोक रहे, रोक रहे, आपकी डायरी में नोट आ रहे हैं, एब्सेंटिज्म के नोट आ रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए नोट आ रहे हैं, बाल काटने के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए नोट आती है, नेल्स कट नहीं किए, हेयर कट नहीं किए, यूनिफॉर्म डर्टी हो गया है, ध्यान नहीं है, शूज़ पॉलिश नहीं किए। बच्चों को छोटी छोटी पनिशमेंट भी मिलती है, कभी राउंड मारने को होता है, कभी कुछ करने को होता है। तो ये उन्हें तैयार करने की टेक्निक्स है, ये किसी बच्चे को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाता। मुझे पता है मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, पर मुझे बस इतना ही बोलना है कि आई नीड योर सपोर्ट। अगर बच्चे तैयार करने हैं तो मुझे एज अ टीम आपका सपोर्ट लगेगा। और प्लीज़ ट्रस्ट रखिए कि हम जो भी करेंगे बच्चों के लिए ही करेंगे। फिर भी कुछ इशू है तो आई हैव गिवन यू फ्री हैंड, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक साथ जगह पर कदम ताल शुरू करेंगे, शुरू कर। वेंटर्स हाउस मध्य से तेज चल। इग्निस हाउस मध्य से तेज चल। टेरा हाउस मध्य से तेज चल। पेरेंट्स चेयर की पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बच्चों के परफॉर्मेंस रेसेस शुरू होंगे। आप पोजीशन चेंज कर लीजिए। एक्वा हाउस मध्य से तेज चल। परेतम। पेरेंट्स फर्स्ट रो आमंत्रितांसाठी ठेवलेली आहे, त्यामुळे फर्स्ट रो रिकामी ठेवा आणि त्यानंतर बसा. वंदे मातरम हे केवळ एक गीत नाही, ते आपल्या स्वातंत्र्याचा श्वास आहे, आपल्या वीरांची गाथा आहे आणि प्रत्येक भारतीयांच्या हृदयात धडधडणारी भावना आहे. या पवित्र शब्दांच्या साक्षीने आपल्या मान्यवर पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी आणि भारत मातेच्या चरणी नमन करण्यासाठी आता सादर होत आहे एक भावस्पर्शी स्वागत गीत, वंदे मातरम. या देशभक्तीपर गीतावर चला तर मग ताल, लय आणि देशप्रेमांच्या भावनांमध्ये हरवून या सुंदर नृत्य प्रस्तुतीचा आस्वाद घेऊया.
जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। मुलांचं कौतुक पहा. तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। खूप छान. Now, our energetic students from grade 2, A and B, are all set to present a dynamic drill hula hoop. With colorful hoops, rhythmic movements, and synchronized steps, this drill highlights coordination, balance, and teamwork, skills that are essential both in sports and in life. So let us cheer loudly and motivate our young performers as they hustle their way to an exciting performance.
ताल पे कदम, सूर पे नजर, संगीत की धुन में खोया हर बशर। कदम से कदम मिले सूरों का साथ हो, कदम से कदम मिले सूरों का साथ हो, संगीत की ड्रिल में हर दिल आबाद हो। क्या धमाकेदार ड्रिल था, जोरदार तालियां। इन खुशियों भरी वाइब्स के साथ आइए दिन के अगले रोमांचक परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। गर्ल्स बॉयज 100 मीटर रनिंग रेस। ती किलबिल, ती अपूर्वाई पुन्हा सुरू होणार आहे। मैदानावर आज तुमचं पिल्लू मित्रांसवेत धावणार आहे। और अब शुरू हो रही है हमारी पहली प्रतियोगिता 100 मीटर की दौड़। पहली कक्षा के सभी प्रतिभागी अपनी अपनी लाइन पर तैयार हो जाए। दर्शकों अपनी तालियों से इन्हें हौसला दें। First standard Garvit, Shaurya, Purvansh and Utkarsh. शानदार दौड़ थी। सभी धावकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। विजेता को बधाई और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। याद रखें कि हर कदम जीत की ओर एक कदम रहता है। आधा पार करते हुए बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ेंगे। वाह, अभिभावक तालियां बजाती रहिए। बस थोड़ी सी दूरी बाकी है, आखिरी हर्डल और अब फिनिश लाइन की ओर। यस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस। पेरेंट्स प्लीज़ तालियां बजाते रहना जब भी बच्चे ट्रैक पर हो, बिकॉज आज आपकी तालियां ही हमको जोश और आत्मविश्वास से भर सकती है, हमारे बच्चों को भर सकती है। प्लीज़ तालियां बजाते रहे, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लीज़ तालियां बजाते रहे।